planning to take a challenge, and that's for 7 days, 7 vlogs. I hope it goes well. Let's see how it goes with you guys. And I'm also planning that I'll try to show you one new thing each day in each new vlog, so that you can also learn something out of it. If I'm unable to do that, pardon me, but I'll definitely try, and if I've said it, I'll give my 100% to it. अभी तो मेरे कान में ना गाना सा चल रहा है. Right now I must tell you it's around 10:30 a.m. I'm a bit late today. Reason being I was working in the morning on something, and reaching the Rohini Court as soon as possible right now because I have a date there. But I think the accused is to be produced from JC, so it will take some time for him to reach, and that will give me an added advantage to reach a little late. So I'm kind of at an advantaged position today. I'll show you what happens in the court there, और be ready for 7 days 7 vlogs challenge. I don't know कि मैं भी इस challenge को कैसे पूरा करूँगी, but I'll do that for sure. भैया किस लोकेशन पे जाने से वैसे आप जनरली मना कर देते हो? सुबह से इतने सारे लोग मना करते हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है सच में. ये क्या करूँ? 30,000 ही जाते हो? 30,000 के लिए तो आप सारे मना करते हो. हाँ, वहाँ नहीं जाते. कहाँ जाते? रोहिणी की दिक्कत नहीं है. जाता हूँ, घंटों लग जाते हैं वहाँ पे. अच्छा, तो तभी तो हम कैब लेते हैं, वरना हम ही ना ले जाए फिर गाड़ी. दिक्कत हो रही है, खाली सवारी है तो कोई फंसे रहो, कोई दिक्कत नहीं. जब खाली फंस जाता है उसका बड़ा दिमाग खराब होता है. जो भी कॉलेज पूछते हैं, आई मस्ट टेल यू आई एम नॉट फ्रॉम एन NLU, क्योंकि आप लोग सीधा पूछते हो विच NLU आर यू फ्रॉम मैम. तो आई एम फ्रॉम NIP यूनिवर्सिटी कॉलेज. इट्स इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, एंड इस बस की वजह से आप कॉलेज नहीं देख पाए, सॉरी. बट या ओके आपने देख लिया. सो दैट्स माई कॉलेज, या एंड दैट्स अ प्लेस आई रियली चेरिश. अब जवाब मिल गया होगा. विच NLU आर फ्रॉम, विच NLU आर यू फ्रॉम, विच NLU आर यू फ्रॉम. आई एम नॉट फ्रॉम अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. आई एम फ्रॉम द इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, विच इज़ अ दिल्ली गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटी. चलते हैं. और दिल्ली में रहने वालों को पता है कि दिल्ली पोल्यूशन का क्या हाल है. एकदम पता है, बाहर निकलती है ऐसा लगता है कि आँखें जल रही हैं लिटरली. आप बट ना आदत सी हो जाती है हमें, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है कि आंखें जल रही है. बट बाहर से कोई आएगा तो उसे बहुत पता लगेगा. तो आई लव दिल्ली, बट आई हेट टू एडमिट इट. एटमॉस्फेयर इज़ वेरी बैड हियर. This information is super helpful for all those people who are in their school right now, or who are in their drop year, and who dream of becoming a lawyer or coming into the law field, becoming a public prosecutor, becoming a judge in India, or choosing related career fields. Unacademy has come up with courses for clearing the CLAT exam, CLAT and other related exams as well. Not only they will give you diverse batches to choose from, but they also have regular webinars, regular sessions to assist you regarding the exams. See this banner here. It is regarding a mentee quiz, that is a mentor quiz. You will have a quiz with your mentor, Miss Neetu Kamal, on 10th of December 5 p.m. You also have exciting prizes if you join this quiz, and this is related to all the CLAT exams, the procedures that are related. The people who are preparing for the CLAT will definitely benefit out of it. Moreover, if you want to know what all batch options you have, then here is this one batch which is starting today, that is on 8th of December for CLAT. You will be taught in both English and Hindi by people who are expert educators in the field. Now you also have a raise a hand feature. In case you feel that you're not understanding anything in the class, you will feel like you're in a physical session only, and you won't feel the boundaries that are associated with virtual session. Here is a discount for you. Check the description box. So I've worn my band and I'm ready to very quickly hop on into the court. I don't want to get late. I know it is not to be worn in public places, but since I am in the cab, I have worn it. और जल्दी से बस पहुंचने ही वाले, just near the court. देख लो कैसे यहाँ पे सुबह सुबह.
देख लो देख लो। ये डिब्बा के में टोटी मुड़ी ना है जो अंदर पानी जाएगा थोड़े मोड़ है हल्की डिब्बा नूब ड्राइवर्स तो ना ही आए, मैं यहाँ पे बहुत बार गाड़ी ठोक चुकी हूँ। स्टे कॉशियस। पता है व्लॉगिंग फॉर लॉयर्स इज एज अनकन्वेंशनल एज स्नो इन दिल्ली, तो काफ़ी अलग लगता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है यार कैसे करूँ, बट देन आई डू इट बिकॉज आई लव इट एंड बिकॉज यू गाइज लव इट। थैंक यू। रीच द कोर्ट बिल्डिंग एंड क्विकली गो टू द कोर्ट। नो मैटर हाउ सीरियस मूड आई एम, मेरे को ना रोज़ गाते हुए बड़ा दुख लगता है, तो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। चलते हैं, ये भी रख देते हैं। पता है आई कैन नॉट टेल यू कितना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये जो चैलेंज मैंने ले लिया है 7 days 7 ब्लॉग्स का, मैं पूरा कर पाऊँगी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं खुल रहा है एक हाथ से। एनीवे हो गया है, चलो इतना कर लिया तो 7 days 7 ब्लॉग्स भी कर लेंगे, है ना। आ रही हूँ फिर से। मेरे को कभी कभी लगता है काश कोई शूट करने वाला होता, बट फिर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन होगा कोर्ट में, कौन सा कैमरा पर्सन एडिशनल पर्सन अंदर आ सकता है। और इंटर्न्स हो गए तो उनको क्या बोलूँगी, तुम लोग वीडियोग्राफी इंटर्न्स हो, नो दैट कैन हैपन, आई हैव टू डील विद इट। My work for the day consisted of cases where not many matters were put up for arguments or for hearings involving some great work. So I got free, I got some charge sheets for new cases, and I was just waiting, doing some work in the library. I'm done with some miscellaneous work for today and court hearing dates as well. But congratulations, I forgot to shoot. Just जैसे कि बिल्कुल मैंने सोचा था वही हुआ। तो फर्स्ट डेट हुई, आई गॉट द चार्ज शीट। मे बी आई एक्सप्लेन यू व्हाट अ चार्ज शीट इज़, क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ तो रोज़ अच्छा बताएंगे, तो चार्ज शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं वो कर रही हूँ 7 days 7 ब्लॉग्स चैलेंज लिए, 7 दिन तक ब्लॉगिंग करूँगी। कर लूँ, रोज़ कहीं ना कहीं जाऊँगी लेकिन लेट आऊँगी। जल्दी आती पता है ना कैसे करना है, क्या करना है, पकड़ना ही तो है, पकड़, वो क्या करना है। एक काम करो, आप जाओ, फिर तो कैसे करना है, जैसे एक असहाय इंसान करता है। आप बस मुझे सामने से देख के बताओ कि मैं दिख रही हूँ। नहीं तेरा मुंह कट रहा, नहीं दिख रही थी, अब मेरे सिर कट रहा है। हाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है। दूर से देख रहे हो, अगर आप पास भी आ गए तो क्या हो जाएगा। नहीं मैं जा रही हूँ ना उधर, पास भी आ गए तो मैं पकड़ लेगा, पकड़ दिख रही है तो इतना दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही पैरों तक, लेकिन क्या दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा दिख रहा था, टांगे पूरी नहीं दिख रही, ये बता रही हूँ। दिख रही है अभी, पैर नहीं दिख रहे अभी, लेकिन पैर क्या, हाँ दिख रही है तो ठीक दिख रही है, पैर जितनी दिखनी चाहिए उतनी दिख रही है। चलो बताओ चार्जशीट क्या होता है। मुझे क्या पता चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट के बारे में बताएंगे और आप भी बताओगे, आपको मैंने बताया हुआ चार्जशीट क्या होती है। आ जाओ मुझे नहीं, जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं क्या बताऊंगी चार्जशीट क्या होती है, और अपना ही तोलिया करके आओ। मुझे काम जल्दी कैसे बताऊं, बताओ बताओ चार्जशीट, चार्जशीट बताओ क्या होती है। मुझे नहीं पता चार्जशीट क्या होती है, मम्मी ठीक से बताओ, मैंने आपको बताया नहीं पता, सच में बताओ। आज का टॉपिक है, आपको जो भी पता है चार्जशीट के बारे में आप बता सकते हो कि चार्जशीट क्या होती है। क्या कोई क्रिमिनल केस होगा, उस पर ट्रायल होगा। ट्रायल नया वर्ड निकाल दिया, ट्रायल मुझे क्या होता है। ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, फाइनल फॉर्म रिपोर्ट है। हाँ क्या है, वो ये फाइनल फॉर्म रिपोर्ट, और क्या है, फाइनल फॉर्म रिपोर्ट ही तो चार्जशीट होती है। जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट होती है, किस पे किसी भी केस पे, हाँ केस की इन्वेस्टिगेशन पे, उसको बोलते हैं चार्जशीट। ठीक है, वो कौन सेक्शन में होती है, लिखा होगा, लिखा, अरे चश्मा नहीं लगा था, चश्मा क्या, 173 सीआरपीसी के 173 में फाइनल फॉर्म रिपोर्ट जो पुलिस बनाती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हमेशा पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट क्या करता है, मतलब मैजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी। ठीक है,
तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद the report that comes to the court is termed as a charge sheet, a challan, or a final form report. A report that is submitted to the court saying that we have completed our investigation and now we are giving you this report which will contain contents of the crime related to the crime, such as name of the accused, name of the suspects, a description of the incident, one FIR or multiple FIRs. शुरू में तो FIR होती है, इसमें सब कुछ बताते हैं कि वो जो FIR हुई थी उस पर हमने क्या एक्शन लिया, क्या किया. ठीक है, कभी FIR कराई आपने? नहीं, झूठ बोल. This is a charge sheet. I am hiding some information that I shouldn't show you. This is a charge sheet that we get from the court. It's usually this kind of a document, थोड़ा बड़ा सा होता है. चार्ज शीट में अगर हम खोलते देखें तो शुरू में तो हमें सब accused के particulars मिलते हैं, crime के particulars मिलते हैं. We also get the details of the witnesses. Then we get a list which is attached with this charge sheet. Generally, it is a site plan. If something is recovered, then details of that recovered thing such as a weapon. ये सब होता है यहाँ पर. फिर इसमें आपको ब्रीफ फैक्ट्स जरूर मिलते हैं केस के. ब्रीफ फैक्ट्स के बाद आपको अरेस्ट मेमो मिलता है. चार्जशीट है तो मतलब कहीं पे अरेस्ट भी किया गया होगा, FIR केस होगा तो अरेस्ट मेमो मिल जाता है. अरेस्ट मेमो में से कब अरेस्ट हुआ, क्यों अरेस्ट हुआ, कौन था अरेस्ट के टाइम पे, किस जगह से अरेस्ट हुआ है, ऑल दैट इज मेंशन्ड. So charge sheet is like saying to the court that we have completed the investigation and now we want the court to try this case. Next stage क्या आता है इसके बाद. जैसे आज कोर्ट ने मुझे चार्ज शीट सर्व करी, नेक्स्ट स्टेज जो लगी है दैट इज फॉर हियरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज. दैट इज police has told the court that we think these sections are made out, these offences are made out against the accused, but the court will now see whether these sections are made out or not. चार्ज बनता भी है या नहीं, वो होगा चार्ज का स्टेज. वहां पे से या तो आपका ट्रायल चलेगा, आपको आप मान लोगे कि आपको ट्रायल चाहिए, या फिर आप वहां से डिस्चार्ज हो जाओगे. डिस्चार्ज नहीं होते तो ट्रायल चलेगा. चार्ज के स्टेज पे कभी भी जब when a person is released on charge, when a case closes on the stage of charge, it is said that the person is the accused has been discharged. We do not say that the person or the accused has been acquitted, क्योंकि acquit कोई भी acquittal can only happen after the trial concludes according to the CRPC. And if the trial has not happened at all, then we cannot say that acquittal has happened. One more thing very important related to the charge sheet. A charge sheet is required to be filed within 60 days and in other cases within 90 days of the date of arrest. So if I get arrested today and if the case is an trial, that is a case is triable by the metropolitan or the judicial magistrate, then the police will have to conclude their investigation within a period of 60 days. Otherwise, I will get a right of default bail. मुझे उस ग्राउंड पे बेल मिल जाएगी, मुझे उस ग्राउंड पे छोड़ दिया जाएगा. पुलिस इज नॉट कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन, इज डिलेइंग दैट. ओके, इसलिए हमें देखने को मिलता है पुलिस ने 59th डे पे चार्ज शीट को सबमिट कर दिया, ये सब करके. और अगर वो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, जैसे ये सेशन 480, ये ट्रायल, और ये जो दूसरी चार्ज शीट है मेरे पास, ये सेशन ट्रायल है. सेशन ट्रायल और ट्रायल में भी डिफरेंस होता है एज पर द सेक्शंस. तो जो सेक्शंस लगे, जो ऑफेंसेस लगे, उसके हिसाब से CRPC में जो शेड्यूल है उससे हम पता कर सकते हैं सेशन ट्रायल में या ट्रायल. बाहर पता है कितनी ठंड हो रही है? तो कहीं ठंड है. आंखें वैसे थकी थकी सी हो रही है, आंखें बहुत ज़्यादा. थैंक यू. मैं देखने गई थी घर. तो उसको पता कैसे चला फिर, SI को, IO को? तो नोटिस गया है ना, तो मतलब है ना. कॉल लिस्ट में क्यों नहीं लगा पता नहीं. अगर फिर तो हम ज़्यादा परेशान होते भी जब IO को भी ना गया होता नोटिस. एक बात नहीं मेरी समझ आई, वहाँ 30,000 में कब की दी थी रेट? दे रहे हो मम्मी? मम्मी थोड़ी टीवी चलाते हैं फिर पढ़ूंगी. रिलैक्स करना भी तो ज़रूरी है. एक तो इतना बड़ा स्ट्रगल है ना ये स्ट्रगल, मतलब मैं क्या करूं, हमारा वाईफाई चलता नहीं है यार.
पासवर्ड तो नहीं दिखाऊंगी मैं, पर डाल देती हूँ हमारा मम्मी स्ट्रगल दिखा रही हूँ मैं अपना कि आप हो, आपका फ़ोन है तो टीवी जिंदा है, ना हमारा वाईफाई वाला ना गंदा है। अगर वो देख रहा है इसको तो अपना वाईफाई उठाए और ले जाए, भाग जाए यहाँ से। पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, नींद आ रही है। I have collected all the items that I need to take tomorrow in my bag. Let's see क्या होता है कल। खाना वाना खा लिया आपने, देख ही लिया था। बाकी as I always say that for every day in the court you should be well prepared. You should not think that I have appeared in such kind of cases 1,000 times and therefore I don't need any preparation. No, you should always think that I have the need to revise the facts, to reread the facts, to reread the charge sheet, to reread the FIR, to entirely read the documents that have been submitted after the investigation has been concluded. So I did that. I don't know, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा पता होता है कि क्या डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन ये करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी एरर कमिट करने की पॉसिबिलिटी घट जाती है थोड़ी सी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड and let's see what happens tomorrow. I will continue this vlog from here tomorrow. Also, it was Advocates Day today. So happy Advocates Day to all the advocates who are watching my video. With this, I am reminded of something. Somebody tagged me in a post on LinkedIn wishing a happy Advocates Day. So she's Sylvia Munjal. Sylvia Munjal wished happy Advocates Day to me, Ramanuj Mukherjee, Abhita Agarwal, Aman Yadav, Abhishek Verma, Komal Shah, lots of people. Thank you for wishing me as well. And she wrote that the power I exert on the court depends on the power of my argument, not my gender. So definitely I'm sleeping, I'm going off to sleep on a very good note today. I must let you know, yesterday I slept around 2 a.m., woke up around 5:30 a.m. I'm really tired. I badly needed this good quote. Thank you, Sylvia. Thank you. I will also reply to her on LinkedIn. I'll say a nice thank you to her for wishing me. See you tomorrow.